Hello everyone. In today class we are going to discuss maths PYQ question. Okay, 5 marks questions. 5 marks question. Okay. In video number 1 we discuss 1 marks question, that is objective. Video number 2 we discuss 2 marks questions. In video number 3 we discuss 3 marks questions. Okay. In today class we are going to discuss about the 5 marks questions. Okay. चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज 32 number question. A part, there are two parts are there in 32 number question. दो पार्ट थे, इसमें और करके दिया था, तो उसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करते हैं. ओके, आपको किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन बोर्ड. देयर आर ए सर्कुलर पार्क of diameter 65 meter as shown in the given flowing figure. AB is a diameter, it means it is given. What is given? It is given AB is a diameter. AB is a diameter and its value is given 65 meter. Yes. Now see the figure. AB is a diameter. Okay. O is radius. OB is radius. An intricate is to be constructed at the point P. P the point where intricate is given on the boundary of the park, such that the distance of P from A is 35 more than important 35 more than the distance of P from B. It means अगर if we assume that, देखना ध्यान से, let PB is equal to x meter, okay, then PA is 35 more than the distance from the B. It means 35 means plus 35 more than means plus 35 किससे? x से. Okay, means PB से. Okay, find the distance of P from A and B. It means हमको ये फाइंड करना है PA और PB फाइंड करना है. मतलब क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर x फाइंड कर लें, उसमें 35 ऐड कर देंगे तो PA आ जाएगा. x आ गया मींस PB आ गया. ओके, तो 9th क्लास याद करिए. एंगल इन सेमी सर्कल, हम लोग जानते हैं एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है. जब भी एक सर्कल बने उसके अंदर वन ऑफ द साइड इज डायमीटर. तो यहाँ पे कितने भी ट्राइंगल बना सकते हैं. फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस वन, taking the diameter is one of the side, diameter is one of the side, this is second triangle, third triangle. Each angle is always equal and 90 degree. सब क्या होंगे? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होंगे. ओके, ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए. तो कह सकते हैं दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री. ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये नहीं याद होता तो क्या करते हैं? हम बोल सकते हैं एंगल O. व्हाट इज द एंगल O? 180 डिग्री. It means angle subtended by this arc AB at center of the circle is 180 degree. The angle subtended by the same arc at the remaining part of the circle, कितना होता है? हाफ होता है. ये कितना? 180 का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री. तो कोई भी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल P जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा. रीजन भी बताना पड़ेगा. व्हाट इज द रीजन? एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. एंगल इन सेमी सर्कल is 90 degree. This is the exact region. Now, so can I say ABP is a right angle triangle? Yes, so you can write here in triangle ABP by Pythagoras theorem, we can say that what AB square means square of the hypotenuse is equal to perpendicular square plus B square, means PB square plus AP square. Okay, yes, we can say that. Now AB value is already given. Diameter is given 65. Okay, 65 square. PB value is, we assumed that this one is x, so x square. AP or PA is given x plus 35 square. But what is 65 square? आपको पता होना चाहिए जब भी यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 25. ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट? 6.
व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द 6? 7। जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 6 42। तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 4225। एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस अगेन ए प्लस बी होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। व्हाट इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन 35 स्क्वायर, फिर आ गया ना 35। तो इंपॉर्टेंट है जब यूनिट 5 रहे तो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 स्क्वायर इज 25। 3 है नेक्स्ट नंबर, 3 नेक्स्ट नंबर ऑफ 3 इज 4, 4 इंटू 3 12, 1225। यू कैन राइट 1225 प्लस 2 x इंटू वाई मीन्स 2 इंटू 35 70, 70 x। ओके चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके फर्दर वी कैन सॉल्व here. So you can write 4225. This constant 1225 you can shift to the left hand side. Minus 1225 is equal to x square plus x square 2x square plus 70x. 4225 minus 1225, I think 3000. Yes, x is 2x square is 2x square plus 70x. Bring all the terms right hand side. The left hand side should be 0. 2x square plus 70x minus 3000. If I take 2 common, so what you are getting? If I take 2 common, x square plus 35x minus 1500. It means we are getting this one. Let's change color. Yes, this one. It means we are getting one equation. So we can write like this one: x square plus 35x minus 1500 is equal to 0. Okay. 2 you can shift to the left hand side, it will become 0. तो राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिख सकते हैं सारे टर्म्स को। ओके तो यू आर गेटिंग दिस वन इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देख सकते हैं क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दो मेथड होते हैं हमारे पास, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमें सम दिया है, सम मींस मिडिल टर्म। मिडिल टर्म क्या है? 35 है, 35 आना चाहिए प्लस का। प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट मींस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, मींस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1500 आएगा, और माइनस 1500 को हमको टू पार्ट में कन्वर्ट करना है सच दैट सम आना चाहिए 35। तो अगर अगर यहीं पे रफ में कर लें 1500 को कैसे लिख सकते हैं? 15 इंटू 100। यस 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 100 को 10 इंटू 10। अभी फैक्टराइजेशन नहीं हुआ प्रॉपर, ओके प्राइम नंबर्स नहीं है सारे, तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 5, इसको भी 2 इंटू 5। अब इसको प्रॉपर वे से लिखे तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 टाइम्स 5। यस तो बताओ कौन सी टू नंबरों में लिख सकते हैं इसको? 2 2 जा 4, 4 हो गया, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इट मींस इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 5 इंटू 5 25। अब देखिए प्लस का 16, 60 माइनस का 25, अगर सम करेंगे ना तो आ जाएगा आपके पास क्या? 35 आ जाएगा। ओके इट मींस दिस मिडल टर्म कैन बी स्प्लिटेड एज ए टू टर्म्स। तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 60x माइनस 25x। 65 माइनस 20 आपके पास क्या आ जाएगा? 35x आ जाएगा। माइनस 1500 is equal to 0. So what we can say, now we are getting four terms. Four terms आ गए। First two terms you are getting something common, in second two terms you are getting something common. So what we are getting something here? X is common. So what is the remaining part here? X plus 60. In second term if you see minus is common, so take the minus, then it is also 25 is common. If I take the 25 common, so what is the remaining part here? X here plus, if I see here we are getting the 60 common, 60 remaining part, means these two terms should be same. कॉमन भी लीजिएगा 60 आएगा। ओके 60 बच जाएगा वहां पे। इन दिस टू टर्म्स x प्लस 60, x प्लस 60 इज कॉमन, तो यू कैन टेक आउटसाइड x प्लस 60 कॉमन
व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट हियर, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बताइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। यस, वी आर गेटिंग हियर x प्लस 60 into x minus 25 is equal to 0. It means if first term is 0, if x plus 60 is equal to 0, then x value कितना आ जाएगा, minus 60. If x minus 25 is equal to 0, so what you are getting, x is equal to 25. But what is x? X is the length. X is the length pb. It means the distance between p and b. p and b के बीच में क्या है, distance है. Distance can be negative? No, distance can be never negative. So this one will be neglected. What is the reason? Distance can never be negative. Never be negative. So x is equal to 25 meter. Okay, so we are getting x value, but we have to find distance pb. Pb means x and pa means x plus 35. It means pa distance is x and it is 25 meter, and pb is x plus 35 means 25 plus 35, I think 30 30 60, yes 60 meter. तो यहाँ पर लास्ट में लिखिएगा डिस्टेंस pa is equal to 25 meter and pb is 60 meter. Okay, I hope this 5 number first question is clear. Okay, इसमें कंसेप्ट यही था आपके पास, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करने आता है, उसको सॉल्व करेंगे, यू आर गेटिंग द आंसर। ओके, और पार्ट, यस दिस इज द और पार्ट, same question or part is given. Find the smallest value of p for which the quadratic equation, this one, x square minus 2 times p plus 1 x plus p square, has real roots. What is the condition for the real roots? If quadratic equation is given ax square plus bx plus c is equal to 0, for real roots हम लोग जानते हैं, ध्यान से बता देते हैं यहाँ पे एक बार। if, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड करते हैं। if d is greater than 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल भी होते हैं और इक्वल होते हैं। इफ d इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सॉरी यहाँ पर रियल और अनइक्वल आते हैं। d शुड बी ग्रेटर देन 0 मींस रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, ओके, रियल एंड अनइक्वल। इफ d is lesser than 0, then not real root, not real roots। तो कह रहा है कि रूट जो है ना रियल है। रियल किस में आ रहा है, इफ यू सी दोनों कंडीशन में आ रहा है, d शुड बी ग्रेटर देन 0, d शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर रियल रूट्स मींस d व्हाट इज d मींस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना। d मींस डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हो सकता है पॉजिटिव हो, इक्वल टू 0 हो और निगेटिव हो, इस पे डिपेंड करेगा। तो कह रहा है फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही लिखेंगे यहाँ पर। तो ए वाला इक्वेशन को देखकर हम बोल सकते हैं व्हाट इज द ए वैल्यू, व्हाट इज द वी वैल्यू, व्हाट इज द ए वैल्यू 1, व्हाट इज द वी वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x -2 टाइम्स p प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, व्हाट यू आर गेटिंग -2p -2, ओके, एंड व्हाट इज द c वैल्यू इज p स्क्वायर। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर द रियल रूट्स, कंडीशन फॉर द रियल रूट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स के लिए d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो इसमें भी रियल रूट आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कह रहा है इक्वल टू आना चाहिए, तो दोनों का कंडीशन का कॉमन क्या आएगा, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू रख दो, यहाँ पे b का वैल्यू रखोगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट -2p प्लस 1 होल स्क्वायर, यस माइनस b, यही है ना,
या ये रख दीजिए या ये रख दीजिए, कोई भी। माइनस दिख रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, ए यूज कर लेंगे। माइनस 4 टाइम्स ए वैल्यू इज 1 एंड सी वैल्यू इज पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट मी चेंज द कलर। यस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए माइनस है यहाँ पे आउटसाइड, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, 2 स्क्वायर इज 4। इसको लिख सकते हैं p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 p प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ a प्लस b होल स्क्वायर p का स्क्वायर p 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 p minus 4p should be greater than equal to 0. If I open the bracket, so what you are getting? 4p square plus 4 plus 8p minus 4p should be greater than equal to 0. इस वाले 4 को क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ओके, इस वाले 4 को हमने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब सब में मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो प्लस 4p स्क्वायर आ गया। यस, तो व्हाट वी आर गेटिंग हेयर? 4p स्क्वायर, ओके, 8p minus 4p, what you are getting? Plus 4p plus 4 is equal, sorry, greater than equal to 0. It means if I take the common 4, what you are getting? p square plus p plus 1 should be greater than equal to 0. अब इसका अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें अगेन मिल गया क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज नॉट इक्वेशन, इट इज द इनइक्वालिटी इक्वेशन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इज द इनइक्वालिटी इक्वेशन। तो यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं फिर। तो व्हाट यू आर गेटिंग हेयर? वी आर गेटिंग दिस वन। लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो व्हाट यू आर गेटिंग हेयर? p स्क्वायर प्लस p प्लस 1 should be greater than equal to 0. Now here you can apply the quadratic means either the, so this is the quadratic polynomial, okay, sorry, quadratic inequality। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आइदर क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशन से नहीं कर सकते हैं, वन है, वन को कैसे लिख सकते हैं फर्दर? अगर इसको हम लोग मिडल टर्म स्प्लिटिंग या फैक्टराइज, चलो डिस्के उससे कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो व्हाट इज द ए वैल्यू इन दिस कंडीशन? हियर ए वैल्यू इज 1 and what is the b value? Also 1 and c value is also 1. So what we are getting here? We are getting discriminant. What is discriminant? b square minus 4ac। तो b का स्क्वायर कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 minus 4 1 into 1, what you are getting? 1 minus 4 means minus 3। Since d is lesser than 0, d is lesser than 0, so it does not has real roots। इसका रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो वही कह रहा है, hence find the roots of the quadratic equation obtained। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसका रियल रूट्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं आएंगे। ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास में रियल रूट्स ही पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, यहाँ पे डी इज निगेटिव आ रहा है, मींस देयर इज ए नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, इमेजिनरी रूट्स रहेंगे, वो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे इस 10th क्लास में। ओके, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। If a line drawn parallel to one side of the triangle, if a line drawn parallel to one side of the triangle, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, the other two side in a distinct point divide the two sides in the same ratio। ये तो बीपीटी थ्योरम है। In a triangle ABC, if a line segment DE is parallel to the one of the side of the triangle, then other two sides are divided in same रेशियो, मींस AD by DB is equal to AE upon AC। यही होता है ना बीपीटी थ्योरम। AD upon DB, AD upon DB is equal to AE upon EC। ओके, AE upon EC, AE upon EC। This is the BPT theorem, but question is state and prove the converse of the above statement। It means converse of BPT theorem, converse of BPT
BPT. Converse of BPT. What is the converse of BPT? Converse of BPT means let me write here. Okay. Yes. In a triangle, okay, if a line segment, if a line segment divide the other two sides, if a line segment divide two sides in same ratio means A, B, C triangle DE divide, line segment D divide AB and AC, like this one, AD by DB is equal to AE upon EC. Then DE is parallel to BC. You have to prove it. Okay, this is the actual question. This one is given in the statement, but you have to prove a state and prove the converse of the given statement. Okay, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे वही डिस्कस करते हैं. चलिए, आई होप क्वेश्चन इज क्लियर. Means you have to state the converse of BPT theorem. What is converse of BPT theorem? Converse of BPT theorem is a line segment divide two triangles of a side in same ratio, then it is parallel to third side of the triangle. Okay, उसी को डिस्कस करेंगे. एक बार इरेज हो जाए. यस, डन. तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो यू आर स्टेट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट व्हाट इज दिस वन. फिगर बना लेते हैं. यस, इन ए ट्राइंगल, in a triangle, if a line segment divide other two sides, any two side, if a line segment divide any two side, any two side of a triangle in same ratio, then line segment is parallel to third side. This is the statement. In triangle A, B, C, this is the D, okay, this is the E. If that is AD upon DB is equal to AE upon EC, then DE is parallel to BC. Okay, it means this one is given, it means it is given, this part is given, and you have to prove, to prove you have to prove it, DE is parallel to BC. This is the all about this question. तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? इट इज गिवन, यहाँ पे देखिएगा, आई एम चेंजिंग द कलर. ओके, ए गिवन है, ये पार्ट गिवन है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC. तो सबको पता होता है कन्वर्स ऑफ ब्यूटी थ्योरम प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें +1 करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है. ओके, तो हम लोग ये अगर प्रूव कर दें, देखिए इन बिगर ट्रायंगल एंड स्मॉलर ट्रायंगल ए इज कॉमन, एंगल ए इज कॉमन. अगर हम ये प्रूव कर दें दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, तो कह सकते हैं बाय ट्रिपल ए दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, अगर इक्वल है तो कह सकते हैं इन दिस वन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे. उसी को हम लोग प्रूव करेंगे. देखिएगा यहाँ पे, yes. तो it is given AD upon DB is equal to AE upon EC. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, जस्ट इसको रेसिप्रोकल लेते हैं, लिख सकते हैं इसको DB upon AD is equal to EC upon A. रेसिप्रोकल ले लिया. जैसे हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे, देखिएगा यहाँ पर DB by AD plus 1, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो EC upon AE plus 1.
तो इसको एलसीएम लेने क्या आ जाएगा, ए डी। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी बी प्लस ए डी। here we are getting what, AE, what we are getting here, EC plus AE। और बताइए BD प्लस AD, BD प्लस AD क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, यस, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। here EC plus AE, EC plus AE, what we can say that this one is AC and AE, AE। तो कह सकते हैं इन ए बिगर ट्राइंगल, in a bigger triangle AB, in a bigger triangle AB, sorry AC, in a smaller triangle AD, in a smaller triangle A, यही ratio given है and A angle is common. It means in a bigger triangle AB, in a smaller triangle AD, ratio is given. In a bigger triangle AC and in a smaller triangle AE, ratio are given, and we can say that angle A is equal to angle A common, common angle. So can I say that by side angle side congruency rule, these two triangles are similar. So you can write here, where I can write okay, in this place I can write easily. Okay, so we can write here by side angle side rule, we can say that triangle ABC, bigger triangle similar to triangle, smaller triangle ADE. Okay, when two triangles are similar, then corresponding angles are equal. In a bigger triangle, angle B, and a smaller triangle, angle D are equal. Bigger triangle, angle C, and a smaller triangle, angle E are equal. So we can write here angle B is equal to angle D, and angle C in a bigger triangle, angle E are equal. Since corresponding angles are equal, तो यहाँ पर लिखेंगे corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, angles are equal, so we can say that here DE is parallel to BC। देखिए टू लाइंस पैरेलल होते हैं तो corresponding angles इक्वल होते हैं, corresponding angles are equal तो two sides are parallel, means two lines are parallel। बी पार्ट, सेम क्वेश्चंस का बी पार्ट अब देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, in the adjoining figure triangle CAB means bigger triangle is a right triangle right angle at A, means this angle is given 90 degree, yes or no, in a bigger triangle. If AD is perpendicular, means this angle is 90 degree, AD is perpendicular to BC, prove that ADB means this smaller triangle is similar to triangle CDA means this triangle are similar. Further, if BC is equal to 10, then CD is equal to 2, then find the length of AD. So first of all, you have to prove that these two triangles are similar. How we can prove that? See here. Can we say that in a bigger triangle, A angle is 90 degree. In this triangle, we can say that this angle is 90 degree. And this angle are equal common in both triangle, smaller triangle and bigger triangle। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये अगर bigger triangle है, this is 90 degree, in a smaller triangle it is written like this one, this is 90 degree, and this angle is B, this angle is B। So here we can say that right angle to this angle, right angle to this angle, common angle, movement is like this one। So we can write here same thing, these two triangles are similar। See here how we can write, in triangle ACAB and triangle ADB, can I write like here, angle A is equal to angle D is equal to 90 degree given, yes or no? Angle B is equal to angle B common angle, region is common angles,
common angles. By double A criteria, 90 degree, then this angle means bigger. In a bigger triangle you are moving 90 degree to B, in a smaller triangle 90 degree to B, like this one. So we can set it by angle rule. Triangle, which triangle? A B C, similar to triangle. Here first angle is A, second angle is B. In a second triangle, a smaller triangle DBA, triangle DBA are similar. Okay, so by CPCT we can say that angle, third angle is here in a bigger triangle, this one. If I assume this one angle 1, this one angle 2, this one angle 3, and this one angle 4. Okay, so we can say that here angle 3 means big in a bigger triangle, angle third angle is angle 1 is equal to angle in a smaller triangle is 3 by CPST, corresponding part of similar triangle. Similarly in triangle, bigger triangle and this smaller triangle, in this smaller triangle, again I am writing here. Okay, so I'm just changing the color. We can write here in triangle, bigger triangle is A B C, and a smaller triangle ADC. Can I say here angle A is equal to angle D? It is given 90 degree. अगर ये 90 degree है तो by linear pair you can say that this angle is also 90 degree. It is given. Okay. Can I say angle 1 is common in both triangle? Angle 1 is equal to angle 1. We can say that this is common angle. Region is common angle. Common angles. जैसे हमें पता चला कि कॉमन एंगल से, तो इन ए बिगर ट्राइंगल इट इज मूविंग लाइक दिस वन, 90 degree to a first angle, here 90 degree to first angle. Okay, so you can say that by a rule, a rule we can say that triangle, कौन सा triangle? Bigger triangle A, then C, then B is similar to triangle in a smaller triangle D, then C, then A. Triangle DC are similar. So by CPST we can say that here third angle is in a bigger triangle, third angle is 2. Third angle is 2 in a bigger triangle, third angle is 2. In a smaller triangle, third angle is 4. These are equal by CPST. Okay, टू एंगल्स इक्वल थे तो थर्ड एंगल भी क्या होंगे? इक्वल बाय CPST. एक यहाँ पे लिखे थे हम लोग CPST से एंगल 1 इज इक्वल टू 3. अब देखिए हमको जो प्रूफ करना था अब उस पे चलते हैं. हमें ये प्रूफ करना था, ध्यान से देखिएगा, हमें प्रूफ करना था इन ट्राइंगल ADB and triangle CDA. In triangle ADB, ADB means this triangle, yes or no? ADB and CDA means this triangle CDA. कह सकते हैं इसमें ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 3, यस और नो? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3. ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, यस और नो? वी ऑलरेडी प्रूव एंगल 2 इज इक्वल टू 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, यस और नो? एंगल 2 इज इक्वल टू, ओके, एंगल 2 इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू, एक्चुअली में यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग एंगल BD ADB. ADB मीन्स दिस ट्राइंगल, तो इसमें लिख सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑलरेडी प्रूव. रीजन क्या है? ऑलरेडी प्रूव्ड एबव. ओके, ऊपर हम लोग ऑलरेडी इसको क्या किए हैं? प्रूव्ड कर दिए हैं. ओके, तो कह सकते हैं बाय डबल ए रूल, बाय डबल ए
रूल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो इसमें फर्स्ट एंगल ये है, इसमें ये था 1 3 के इक्वल टू था। ओके, सेकंड कलर ले लेते हैं, यस व्हाइट वाला ले लेते हैं, नहीं व्हाइट पे नहीं आएगा, ये यस दिस वन। सेकंड एंगल इज हेयर 4 एंड सेकंड एंगल इज हेयर 2, तो कह सकते हैं 1 से 2 की तरफ जाना है, ऐसे जाना है। ओके, 1 से 2 की तरफ जाना है, फर्स्ट एंगल टू सेकंड एंगल। तो कौन सा ट्राइंगल होगा, सी ए डी, सी ए डी होगा इसमें, और इसमें क्या होगा, ए बी डी होगा। ओके, तो वही बात होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी, not A B D, A D B, A D B is similar to triangle C D A. Okay, hence proved. इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना था आपको कि पहले बिगर ट्राइंगल और स्मॉल ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था, फिर बिगर ट्राइंगल टू स्मॉल ट्राइंगल। ओके, देन दोनों में हम लोग देख लेंगे दो एंगल इक्वल आ जाएंगे। ओके, एंगल 1 3 की इक्वल टू आ जाएगा, 2 4 की इक्वल टू आ जाएगा, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, डबल ए रूल, बिगर ट्राइंगल टू स्मॉलर ट्राइंगल, डबल डबल ए रूल, बिगर ट्राइंगल टू स्मॉलर ट्राइंगल, फिर क्या करेंगे, डबल ए से ही क्या होगा, टू स्मॉलर ट्राइंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम वन फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब of side 14 centimeter, the largest possible cone curve out. Find the volume and surface area of the remaining solids. Okay, क्या बोला गया है, from the one face of the solid cube, एक solid cube बना लेते हैं, yes, this is the cube, yes, this is the solid, okay, cube, and its side is given 14 centimeter, 14 centimeter. The largest possible cone curve out. What is the largest possible cone? Means if I draw, let me first of all complete this one. Okay, yes, this is the cube. What does mean with the largest possible cone? मीन्स कोन एक यहाँ से हमको कर्व आउट करना है, मतलब बाहर निकालना है कट करके, तो कर सकते हैं उस कोन का बेस जो होगा उसके वन सरफेस पे होगा, 6 सरफेस होते हैं उसमें से एक पे सरफेस पे, इस पे कोन का सरफेस होगा बेस, और उसका कोन का जो हाइट होगा कह सकते हैं लेंथ ऑफ एज के इक्वल टू होगा, इतना ही कोन हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। यस और नो, it means for the one of the face of the solid cube 14 centimeter, the largest possible cone curve out, for the largest cone possible curve out क्या होना चाहिए, height of cone, देखिए आप लिख देते हैं height of cone या height of cone is equal to height of cube, height of cube means height of cube means हाइट ऑफ द क्यूब। ओके, इसमें क्या होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होता है क्यूब में सेम होता है, तो हाइट ऑफ क्यूब के इक्वल टू होगा। यस और नो, इट इज ऑलरेडी गिवन, इट मींस हाइट ऑफ द कोन मींस वी कैन राइट एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूब मींस ए मींस 14 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, कैन आई से दैट द डायमीटर ऑफ द कोन इज इक्वल टू एज ऑफ द और साइड ऑफ द क्यूब, साइड क्यूब के साइड के इक्वल टू होगा। यस और नो, तो सेकंड पॉइंट वी कैन राइट हियर, फिगर से भी देख सकते हैं, डायमीटर डायमीटर ऑफ कोन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड या क्यूब साइड, क्यूब ऑफ साइड, क्यूब ऑफ साइड, ये कितना गिवन है डायमीटर को डी से डिनोट करते हैं, इक्वल टू क्यूब इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स रेडियस, इट मींस 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो ओके, यानी रेडियस भी आ गया आपके पास, हाइट भी आ गया। ओके, किसका, कोन का हाइट ये रहा, किसके इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, लेंथ ऑफ द एज के इक्वल टू हो जाएगा या हाइट ऑफ द कोन के क्यूब के इक्वल टू हो जाएगा। अब कह रहा है
पाई का वैल्यू यूज करना है 22/7 और √5 का वैल्यू 2.2 यूज करना है। ओके, तो देखिए क्या करना है, फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। वॉल्यूम बताइए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड्स कितना हो जाएगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये होगा ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें पुट कर दीजिए वॉल्यूम, ए क्यूब माइनस 1/3 पाई इज पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7, 22/7, रेडियस वैल्यू इज, रेडियस 7, 7 का स्क्वायर मींस 7 into 7, एच, एच मींस 14। ओके, 7 7 कट कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचेगा, ए क्यूब मीन्स 14, 14 का क्यूब माइनस 1/3 22 इंटू 7 इंटू 14। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कैंसिल आउट होगा, कुछ कुछ होगा तो कर देते हैं, नहीं तो इसको रहने देते हैं। तो 14 क्यूब, इसमें लिख सकते हैं 14 स्क्वायर कॉमन, 14 इज कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग पार्ट 14 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। Yes, 14 is outside. 14 square means 196 minus, what is this, 7 to the 14. 7 to the 14 means 15 divided by 3. So we can write here 14 into 196 minus 54. 6 minus 4 2, 9 minus 5 4, and then 1 minus 1 0. Okay, 3. After cancellation you are getting 3 1 ja 3, 1 is the remainder means 12 means 4, 14 into 14 means 196 centimeter cube. Okay, it means volume of the remaining portion, remaining solid is 196 centimeter cube. Okay, आपके सामने सॉल्व कर दिए। अब करना, अब ये भी बताना है, इफ आई कट आउट ए कोन that is possible, maximum possible cone। ओके, तो क्या बचेगा, सरफेस, सरफेस भी बताना है, तो कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया बचे, टोटल सरफेस एरिया में से एक सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऐड कर देंगे कोन का, वो आ जाएगा आपके पास क्या, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग कट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट कट होगा, वो सर्कुलर पार्ट जो है ना एक कट हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया में से क्या करेंगे, सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, उसके बाद से और न्यू सरफेस एरिया बन जाएगा क्या, आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वहां पे खाली हो जाएगा। ओके, वो न्यू सरफेस बनेगा, तो वही यहाँ पे लिखते हैं, पे लिख दें, वेट, यस यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा टी ए से, टी ए से टी एस ए ऑफ कोन, सॉरी क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, बेस का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ऑफ कोन। ओके, तो इसके लिए आपको एल फाइंड करना पड़ेगा, व्हाट इज द एल, रेडियस इज गिवन 7 एंड एच इज गिवन 14, तो व्हाट इज द एल वैल्यू, व्हाट विल बी द एल वैल्यू, मींस स्लेंट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, रेडियस इज 7, 7 का स्क्वायर 49 एंड हाइट मीन्स 14, 14 मीन्स 196। इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 9 प्लस 4 13, 13 1 13, 13 1 14। ओके, एंड दिस वन 1 1 2। ओके, 245। ओके, हाँ 245, you are getting 245, and what is the square root of 220, 225, we can write 225, you can cancel out 5 by 5, 245, you can cancel out by 5, 5 4 ja 20,
4 remainder, 4 remainder means 45, 9 times 7 and 7. Okay, yes, 7 7 are 49, 45, 9 5 is this one. You can write 7 root 5 centimeter. Okay, salient height is also given. So just substitute here. TSC of cube is 6 into a square pi r square plus cone. What is the curved surface area of the cone? Pi into r into L. Just substitute the value. What is the a value? 14. 14 square minus pi value is 22 by 7. R square means radius is 7. So 7 into 7. Okay. Plus pi value is 22 by 7 into radius value is 7 and salient height is I think 5 root 7. No, 7 root 5. I think. Yes. Let me check. 7 root 5. Yes, 7 root 5. Yes, you are getting this one 7 root 5. Just cancel out whatever the we can cancel out. 7 is 7, 7 and 7 cancel out. What is the remaining part? 6 into 9, 14 square is 196. After solving this one to a 22, 7 ja, I think 154. Okay, this one 7, this one 154 plus root 5. Okay, root 5 is also given 2.2. Yes or no? Yes, 2.2 is given. So you can substitute here 6 6 ja 36, 6 9 ja 54, 54 plus 3 57. Okay, 57 means 5, 5 plus 6 11. Am I correct? Yes, you are correct. Hai answer 6 6 ja 36. Okay, and carry forward 3 6 9 ja 54, 54 plus 3 57, 5. Okay, 6 and 5 11. Okay, minus 154 plus 154 into 2.2. Solve it, you are getting the answer. So what we can say that here we can say that this one 1 6 minus 4, 6 minus 4 2. Okay, 7 minus 5 2, and this one 1 minus 1 0, and this one is 1 100 1022 plus 154 154 into 2.2 into 2.2, we are getting 338.8. After adding 1022, we are getting 1360.8 centimeter square. This is the area of the remaining solid. Okay, तो इसमें कंसेप्ट यही था, जब भी हम लोग सॉलिड कट करके निकालते हैं तो उसका सरफेस तो हटेगा ही उतना, एरिया ऑफ द सर्कल. ओके, उसके बाद से वो नया एक सरफेस भी बन जाएगा जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड है. ओके. Okay, I hope this question is also Korean. This one is the last question of the 5 mark question. The following distribution show the marks of